Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. My today's topic is the properties of ionic compounds and covalent compounds. So let us first take the properties of ionic compounds. The important properties of ionic compounds are: number first, ionic compounds are usually crystalline solids. आयनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है यूजुअली. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज्ड ions attract one another strongly and form a regular crystal structure. The crystals of ionic compounds are hard and brittle. जो ionic compounds है ये solids है क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज्ड ions है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली. So they form regular crystal structure. For example, sodium chloride जो common salt है, that is a crystalline solid. So first property is that they are usually crystalline solids. Now the second property of ionic compounds is ionic compounds have high melting points and high boiling points. Ionic compounds जो है उनमें melting point high होता है, boiling point भी high होता है. For example, sodium chloride has a high melting point of 800 degrees Celsius and a boiling point of 1413 डिग्री सेल्सियस. अगर हम लेंगे सोडियम क्लोराइड तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है यानी जब ये मेल्ट होगा, जब इसका टेम्परेचर पहुंचेगा 800 डिग्री सेल्सियस तब जाके ये मेल्ट होगा. और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री, इस पर ये बॉयल हो जाएगा. सो दिस आर वेरी हाई. The ionic compounds are made up of positive and negative ions. There is a strong force of attraction between the oppositely charged ions, so a lot of energy is required to break this force of attraction and melt or boil the ionic compound. क्योंकि जो इनके दरमियान एक strong force of attraction होता है इस between the oppositely charged ions, so लिहाजा यहाँ पर काफ़ी heat energy ज़रूरत पड़ती है इसको इस force of attraction को break करने के लिए. So due to this, ionic compounds have high melting points and high boiling points. The third property of ionic compounds, they are usually soluble in water. ये soluble water में होते हैं but insoluble in organic solvents. लेकिन जो organic solvents है जैसे इथर है, स्टून है, अल्कोहल है, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ इनमें ये insoluble है, ये डिजॉल्व नहीं होता है इनमें. हाँ, लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, अगर हम ये वाटर में डालेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगा. लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम डालेंगे जैसे इथर है, बेंजीन है या केरोसिन ऑयल है, तो ये वहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होगा. फोर्थ प्रॉपर्टी इज आयोनिक कंपाउंड्स अट्रैक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water or when melted. आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है जब इसको वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे या जब ये मेल्ट होगा. इसका मतलब ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन्स. आयोनिक कंपाउंड्स इनमें आयन्स होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. लेकिन जो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर वो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट नहीं करते हैं इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इन द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड द आयन्स आर हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड पोजिशंस by strong electrostatic forces and cannot move freely. So solid ionic compounds are non-conductors of electricity. जो solid ionic compounds है they are non-conductors of electricity, वहाँ पर electricity pass नहीं होती है. But when we dissolve the ionic solid in water or melt it, the crystal structure is broken down and ions become free to move and conduct electricity. लेकिन जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या इसको मेल्ट करते हैं तब इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है और आयन्स फ्री रहते हैं मोमेंट के लिए और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. देन the properties of covalent compounds. जो important properties है covalent compounds के, first one is covalent compounds are usually liquids or gases.
only some of them are solids. यानी ये ज़्यादातर लिक्विड्स या गैस होते हैं, सिर्फ कुछ इनमें कोवलेंट कंपाउंड्स में जो सॉलिड्स होते हैं. अगर हम एग्जांपल लेंगे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन, दे आर लिक्विड्स. इसके बरअक्स अगर हम लेंगे मीथेन, ईथेन, ईथीन, ईथाइन, क्लोरीन, दे आर गैसेज. ग्लूकोज, कैन शुगर, यूरिया, नेफ्थलीन एंड आयोडीन आर हावर सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड्स. यानी कुछ सॉलिड भी हैं. The covalent compounds are usually liquids or gases due to the weak force of attraction between their molecules. ज़्यादातर होते हैं ये लिक्विड्स या गैसेस, बिकॉज इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है. देन कोवलेंट कंपाउंड्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. अगर हम एग्जांपल लेंगे नेफ्थलीन, इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस. And carbon tetrachloride has a low boiling point of 77 डिग्री सेल्सियस. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा. अगर हम नेफ्थलीन लेंगे तो ये मेल्ट होगा 80 डिग्री सेल्सियस पर. तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हो 77 डिग्री, यानी जब ये बॉयल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनटू वेपर्स, दैट इज 77 डिग्री सेल्सियस. सो इट इज़ very low boiling point. Covalent compounds, they are made up of electrically neutral molecules, so the force of attraction between the molecules of a covalent compound is very weak. जो इनके दरमियान force of attraction होता है covalent compounds के दरमियान, that is very weak. Only a small amount of heat energy is required to break these weak molecular forces, due to which covalent compounds have low melting points and low boiling points. हमें कम हीट की ज़रूरत पड़ती है इनको ब्रेक करने के लिए, इस फोर्स को, लिहाजा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. देन थर्ड प्रॉपर्टीज, कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है. फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन एक कोवलेंट कंपाउंड है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में इनसॉल्युबल है बट डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होता है, जैसे ईथर. सम ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, शुगर एंड यूरिया आर हावर सॉल्युबल इन वाटर. कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स में ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है, वो वाटर में सॉल्युबल है. देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स है. इसका मतलब ये है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो है दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. That means they do not conduct electricity. Covalent compounds do not conduct electricity because they do not contain ions. Because इनमें ions नहीं होते हैं, लिहाजा ये जो electricity है वो conduct नहीं करते हैं. For example, covalent compound like glucose, cane, sugar, urea, alcohol and carbon tetrachloride, they do not conduct electricity because they do not contain ions. So these are the properties of ionic compounds and covalent compounds. So if we compare the properties of ionic compounds and covalent compounds, ionic compounds are crystalline, covalent compounds are usually liquids or gases. Ionic compounds have high melting points and boiling points, that is they are non-volatile. Covalent compounds have usually low melting points and boiling points, that is covalent compounds they are usually volatile. Ionic compounds conduct electricity when dissolved in water or melted. Covalent compounds do not conduct electricity. Ionic compounds are usually soluble in water. Covalent compounds are usually insoluble in water, except glucose, sugar, urea. Ionic compounds are insoluble in organic solvents like alcohol, ether, stone. Covalent compounds are soluble in organic solvents. So this is about the properties of ionic compounds and covalent compounds.